عباس عسکری برعظمت محمد و آل محمد صلوات۔ بآواز بلند صلوات تلاوت فرما دیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانہ کل غنیمت و فضل و کاشف کل عظیمت و عزل، احمدہ علی عواطف کرمہ و ثوابغ نعمہ، و اؤمن بہ اولا بادیا و استہدیہ قریبا ہادیا۔ الصلاۃ والسلام علی الحسین وعلی رب الحسین وعلی جد الحسین وعلی اب الحسین وعلی ام الحسین وعلی اخی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی شیعۃ الحسین وعلی محب الحسین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق القائلین و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما دیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، سارے مل کے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے باواز بلند نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات تلاوت فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، احسان سمجھ کے نہیں، ایمان سمجھ کے، واجب سمجھ کے نہیں، اوجب سمجھ کے، زحمت سمجھ کے نہیں، رحمت سمجھ کے بلند آواز سے آل محمد کی ذات پہ درود بھیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جناب گفتگو شروع کی جائے؟ قبلہ اجازت ہے؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور ترجمہ کروں گا، اور اسی ترجمے سے میں آپ کا معیار سماعت چیک کروں گا کہ آپ میں سے کتنے ہیں کہ جو سننے والے ہیں اور کتنے ہیں جو دیکھنے والے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ فرمایا اے حبیب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ یہ تھوڑا تھوڑا یہ میرے ساتھ ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے تسلی ہو کہ میرے سامنے سن کر سمجھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے حبیب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ یہ اللہ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ اب آئیے اللہ سے سوال کرے پروردگار یہ تو نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے جواب دیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ اے حبیب اس شہر کو تجھ سے نسبت ہے۔ اے حبیب لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، اس لیے کہ اس شہر کو تجھ سے نسبت ہے۔ اس شہر کی گلیوں میں تیرے قدموں کے نشان ہیں۔ کیا فرمایا میرے حبیب اس شہر کی میں نے قسم اس لیے کھائی کہ اس شہر میں تو رہتا ہے، اس شہر کو تجھ سے نسبت ہے، اس شہر کی گلیوں میں تیرے قدموں کے نشان ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون جاگ رہا ہے اور کون سن رہا ہے۔ کیا کہا کہ اس شہر کی گلیوں میں میرے حبیب کے قدموں کے نشان ہیں۔ او گوپے راہ کے شیعہ سنی دوستو، جس زمین پر جس شہر کی گلیوں میں اللہ کے حبیب کے قدموں
कदमों के निशान लग जाएं, वो जगह इतनी मोहतरम कि अल्लाह कुरान में कस्में उठाए और जिनके मुंह में अल्लाह के हबीब की जबान लग जाए, उसका मकाम क्या होगा। भाई देखें, जिस जगह अल्लाह के हबीब के कदम लगे वो तो इतनी मोहतरम कि अल्लाह कुरान में कस्में उठाए। तुम भी ख्वाहिश करो कि हम मक्का जाएं, हम मदीना जाएं, वो जगह तुम्हें इतनी पसंद, तो जिनके मुंह में अल्लाह के हबीब की जबान आ जाए, फिर उनका क्या मकाम होना चाहिए। आगे क्या फरमाया, व वालिदिन व मा वलद, एक वालिद की कसम, एक वलद की कसम, एक बाप की कसम, एक बेटे की कसम, एक बाप की कसम, एक बच्चे की कसम। व वालिदिन व मा वलद, एक वालिद की कसम, एक वलद मौलूद की कसम। मेरे गोपे राह के शिया सुन्नी दोस्तों, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता हूं कि प्यारे खालिक, ये क्या किया। कसम खानी है तो तौरात की खा, कसम खानी है तो ज़बूर की खा, कसम खानी है तो इंजील की खा, कसम खानी है तो कुरान मजीद की खा, कसम खानी है तो कलम की खा, कसम खानी है तो लौह की खा, कसम खानी है तो काबा कौसैन की खा, कसम खानी तो मकाम अदना की खा, कसम खानी तो औहा अलाबदही में औहा की खा, कसम खानी तो मेरे थोड़े और चुप मोमनीन की खा। ऐसे शहर की तुझे कसम खाने की जरूरत क्या पड़ गई। क्या तू नहीं जानता कि इस शहर में काफिर भी रहते हैं। क्या तू नहीं जानता कि इस शहर में मुशरिक भी रहते हैं। ऐ अल्लाह, ऐसे शहर की कसम क्यों खाई जिस शहर में काफिर रहते हैं, इस शहर में मुशरिक रहते हैं, इस शहर में नबी के जानी दुश्मन रहते हैं, इस शहर में नबी को परेशान करने वाले रहते हैं। ऐसे ही शहर की कसम खाने की जरूरत क्या पड़ गई। अबू जहल इस शहर में, अबू लहब इस शहर में, अबू सुफियान इस शहर में, मुशरिक इस शहर में, काफिर इस शहर में, अबू जहल इस शहर में, अबू लहब इस शहर में, अबू सुफियान इस शहर में। जागो तो बताऊं कि एक और अबू भी इस शहर में रहता है, एक और अबू भी इस शहर में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, जो आपके जहन में वही अबू इस शहर में है, वो अबू भी इस शहर में। परवरदिगार अल्लाह, फिर तूने ऐसी शहर की कसम क्यों खाई। आवाज आई आमर, मैंने इसलिए कसम नहीं खाई कि इस शहर में मुशरिक और काफिर रहते हैं, मैंने तो इसलिए कसम खाई है कि इस शहर में एक बच्चा तशरीफ ले आया, मुझे उस बच्चे अली की कसम, उसके बाप अबू तालिब की कसम। मुझे उस बच्चे अली की कसम, व वालिदिन व मा वलद, एक वालिद की कसम, एक वलद मौलूद की कसम, एक मौलूद आया, मुझे उस मौलूद अली की कसम, उसके बाप अबू तालिब की कसम। मेरे बुजुर्गों, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं एक हदीस पढ़ दूं। नबी ने क्या फरमाया कि बिलालामा साहब बैठो, मेरे तायद करेंगे। अल्लाह नबी ने फरमाया कि कुल्लो मौलूदन यूलदो अला फितरतल इस्लाम वला युहव्विदान वला युमज्जिसान। दोस्तों, जब कोई बच्चा जब पैदा हो, जहां पैदा हो, जैसे पैदा हो, वो फितरत इस्लाम पे मुसलमान पैदा होता है। भाई मैं कोई पहली दफा नहीं पढ़ रहा। लाहौर मॉडल टाउन में 2019 में खिताबत के कंपटीशन हुए थे, 3 कंपटीशन हुए थे, 3 में से 2 आपके नौकर ने विन किए थे। रहीम यार खान में गरीब खाना है, तकरीबन यहाँ से 600 किलोमीटर का फासला है, और इतनी दूर का बंदा आपके सामने पढ़ रहे और आप बेनियाजी कर रहे हैं, मर्जी है आपकी। हाँ, क्या फरमाया मेरे हबीब, कुल्लो मौलूदिन यूलदो अला फितरत इस्लाम, कि फरमाया जब भी कोई बच्चा जब पैदा हो, जहां पैदा हो, जैसे पैदा हो, वो फितरत इस्लाम पे मुसलमान पैदा होता है। यानी जो बच्चा भी दुनिया में आता है वो फितरत इस्लाम पे आता है, मुसलमान पैदा होकर आता है। अगर अल्लाह काफिर बना के भेजे और वो कलमा न पढ़े तो काफिर का कसूर नहीं, क्योंकि अल्लाह ने काफिर बना के भेजा है। अगर अल्लाह मुशरिक बना के भेजे और वो ला इलाहा न कहे तो मुशरिक का कसूर नहीं।
क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुशरक बना के पैदा किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि हदीस रिसालत बाब नस है कि जो बच्चा भी आता है वो फितरत इस्लाम पे मुसलमान होता है। फिर जैसे उसके माँ बाप होते हैं, जैसे उसके मुरब्बी होते हैं, जैसे परवरिश करने वाले होते हैं, बच्चा वैसा हो जाता है। माँ बाप अगर काफिर तो बच्चा भी काफिर, माँ बाप यहूदी तो बच्चा यहूदी, माँ बाप मजूसी तो बच्चा मजूसी, माँ बाप बरेलवी तो बच्चा बरेलवी, माँ बाप शिया तो बच्चा शिया, माँ बाप सुन्नी तो बच्चा सुन्नी। जैसी गोद वैसा मजहब, जैसी तरबियत वैसा मजहब, जैसा माहौल वैसा असर। दो बच्चों की अबू तालिब ने परवरिश की, दो बच्चों की अबू सुफियान ने परवरिश की। जिन्हें अबू सुफियान पालता रहा एक माविया बना, दूसरा यजीद। जिन्हें अबू तालिब ने पाला एक मोहम्मद बना, दूसरा अली। जिन्हें अबू तालिब ने पाला एक नबियों का सुल्तान, एक वलियों का सुल्तान। शर्म ही नहीं आती मौलवी को ये कहते हुए कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। भाई अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था, निकाह तो पढ़ा था। और मुझे 4 सतरें याद आ गई है, किसी ने लिखा, क्या खबर तुझको मुसलमान किसे कहते हैं, और क्या खबर के साहिब ईमान किसे कहते हैं। पहले जाके पढ़ मोहम्मद के निकाह नामे को, फिर तू समझेगा कि इमरान किसे कहते हैं। सलवात पढ़ दीजिए बुलंद आवाज से। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। जो कुछ खालिक ने आले मोहम्मद को अता किया उसे फजाइल कहते हैं। जो कुछ उम्मत ने आले मोहम्मद को अता किया उसे मसाइब कहते हैं। फजाइल जैसे आपका जी चाहा आपने सुना, लेकिन मसाइब हमेशा गरीब बन के सुना करो। क्यों? क्योंकि जो बीबी शाम से चल के आती है ना, वो फजाइल सुनने के लिए नहीं आती। बीबी से तो जब भी पूछा गया बीबी क्यों आती हो, तो बीबी रो के कहती मैं तो आती हूँ अपने भैया हुसैन को रोने के लिए। बीबी कहती मोमिन मेरा सफ़र भी देख और मेरी हसरत भी देख। शाम से आती हूँ ये हसरत लेके कि कोई मोमिन बैठा होगा जो हुसैन को रोएगा। मैं हुसैन का पुरसा लेने के लिए आती हूँ। अब अभी किबला साहब के बाद मजलिस तमाम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। पढ़ने वाले भी चले जाएंगे अपने अपने घरों को, तुम सुनने वाले चले जाओगे अपने घरों को। लेकिन 2 माँ बेटी, एक शाम वाली और एक जन्नतुल बकी वाली, ये दोनों माँ बेटी सारी रात इसी अज़ा खाने में फिरती रहेंगी। बेटी माँ का हाथ पकड़ के गई, अम्मा एक मोमिन यहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा आज यहाँ पे मजलिसी हुसैन का जिक्र हो रहा था, हुसैन की मुसीबत पड़ी जा रही थी। अम्मा जब जाकिर कोई हुसैन की, मेरे भैया हुसैन की मुसीबत पड़ता था मोमिन रोते थे। अम्मा एक मोमिन यहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा एक मोमिन यहाँ बैठा रो रहा था, अम्मा एक मोमिन यहाँ बैठा रो रहा था। यूं निशांत ही कराते कराते बीबी ज़ैनब एक बात करती है जिससे ज़मीन में ज़लज़ला आ जाता है। बीबी ज़ैनब कहती अम्मा ज़हरा मुझे ये बताइए, इतने मुसलमान, इतने मोमिन मेरे भैया हुसैन को रो रहे हैं, इन्हें मुसलमान पत्थर क्यों नहीं मारते। बीबी ज़हरा कहती है ज़ैनब बेटा पत्थर क्यों मारे मुसलमान, रो तो तेरे गरीब हुसैन को रहे हैं, इन्हें पत्थर क्यों मुसलमान मारे। बिला तशबी सर से चादर हटाती है ज़ैनब और कहती है मां मुझे बता, अगर हुसैन को रोना जुर्म नहीं तो बता मेरा सर जख्मी क्यों है। अम्मा मैंने तो शाम के बाजार में जब भी कहा है हुसैन, अम्मा कहीं से पत्थर आया, अम्मा कहीं से नेजा आया, अम्मा कहीं से आग बरसाई गई, अम्मा मुझे तो ना रोने दिया गया। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसायअलमुल लज़ीना ज़लमू यमन कल्बी। जो अहबाब बाहर खड़े हैं आपकी खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि आज की मजलिस अज़ा के आखिरी ख़तीब माहसल ज़िक्र का दुआ हुआ करती है, तशरीफ़ फरमा हैं जनाब अल्लामा सैयद मज़हर अब्बास बुखारी ऑफ लाहौर। जितने अहबाब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ। आपके आते वक़्त तक मैं ऐलानाते मजालस किए देता हूँ।
کل 10 نومبر خلیل کربلا کی سالانہ یادگار کے عنوان سے گوپیرا میں ملک برادران کے زیر اہتمام صبح تا شام نواب کربلا علیہ السلام کے ذکر کا اہتمام ہے۔ 30 نومبر 27 جمادی الاول نقوی سادات شیخم کے زیر اہتمام